آج عید پینتیکوس کا دن ہے. میری طرف سے کلیسیا کی طرف سے آپ سبوں کو عید پینتیکوس کا دن مبارک ہو. خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے 13ویں آیت مقدسہ تک ہے، لیکن ہم پہلی آیت سے 4 آیت مقدسہ تک خداوند کے کلام میں سے حوالے کو تلاوت کریں گے. میرے عزیزو، خداوند کے مقدس پاک کلام میں یوں لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. خداوند کے مقدس معتبر لا تبدیل زندگی بخش کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے اور خدا پاک روح کی منت کریں گے کہ آج وہ ہمیں اپنے کلام کو سکھانے کے لیے ہمارے اوپر استاد مقرر ہو، تاکہ آج ہم جو کچھ بھی سیکھیں وہ خدا پاک روح کی رہنمائی میں سیکھیں. پہلے سمنی باپ، ہم آپ کا شکریہ، آپ کی تعریف، آپ کی تمجید کرتے ہیں اس وقت کے، اس موقع کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا. سب سے بڑھ کر ہم آپ کے کلام کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے شراب اور راہ کے لیے روشنی ہے. پہلے سمنی باپ، ابھی جب ہم آپ کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں، ہم میں سے ایک ایک کے ذہن کو کھولی تاکہ ہم اچھے لائق طریقے سے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیاں کلام کے مطابق بسر کر سکیں. مسیح خدا کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. میرے عزیزو، جب ہم پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 23واں باب پڑھتے ہیں تو 23ویں باب میں یہودیوں کی مختلف عیدوں کا وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، اور ان میں سے 3 یہودیوں کے نزدیک بڑی اہم عیدیں سمجھی جاتی تھی، اور وہ ان عیدوں کو بڑے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ مناتے تھے، اور ان کے نام یہ ہیں. سب سے پہلے عید فصح یعنی فطیری روٹی کی عید، اور دوسری عید عید پینتیکوس یعنی ہفتوں کی عید، اور تیسری عید عید خیام یعنی خیموں کی عید. عید پینتیکوس عید فصح کے بعد 50ویں دن منائی جاتی تھی، اور پینتیکوس جو ہے یہ یونانی زبان کے لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے 50واں. اور مسیحی روایت میں عید پینتیکوس ایسٹر کے اتوار کے بعد 50ویں روز منائی جاتی ہے. اس روز روح القدس کا نزول ہوا تھا، اس لیے اس کو عید نزول بھی کہا جاتا ہے. اور آج ہم کلام کی روشنی میں روح القدس کے متعلق جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یہاں پر اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں روح القدس کا نزول ہوا ہے، اس نزول کے بارے میں پہلے ہی سے خدا کے کلام میں جو ہے وہ پیش گوئی کر دی گئی. جب ہم یوئیل نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. یہ ایک پیش گوئی ہے، اور اس کا جو پورا ہونا ہے وہ ہمیں اعمال کی کتاب کے 2 باب میں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، اور یہ جو دوسرا مددگار ہے یہ روح القدس ہے. اور جب وقت پورا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے وعدہ کے مطابق
पेशगोइयों के मुताबिक, अपने कहने के मुताबिक जो है वो रूह कुदस को जो है वो नाज़िल करता है। इससे पहले कि हम तिलावत करता हवाले पर गौर करें, मैं चाहता हूँ कि हम रूह कुदस के बारे में जो चंद ज़रूरी और अहम बातें हैं हम उनके बारे में सीखें। सबसे पहला ये सवाल है कि रूह कुदस क्या है या रूह कुदस कौन है। हमें रूह कुदस के बारे में जानने की ज़रूरत है। रूह कुदस खुदाए सालूस का एक अकनूम सालस है। रूह कुदस खुदा का रूह है। रूह कुदस जो है ये खुदा है। अक्सर लोग जो है वो रूह कुदस के बारे में जो है वो इतना सीरियस नहीं लेते, या वो अक्सर जो है वो इस तरह से रूह कुदस को जो है वो हुक्मन कहते हैं। हम रूह कुदस को हुक्म नहीं दे सकते। रूह कुदस खुदा है, हमें उसको ऑनर करना है, उसकी इज्जत करनी है और उसको बड़ी अकीदत और ताज़ीम के साथ हमें उसको बुलाना है, उसको वेलकम कहने की ज़रूरत है। और इसके बाद एक और सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि हम रूह कुदस को किस तरह से हासिल कर सकते हैं या हमें किस तरह से रूह कुदस मिलता है। जब हम अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों को मानते हैं, उनका इकरार करते हैं, उनको तर्क करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बतौर अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसी वक्त हमें जो है वो रूह कुदस मिल जाता है। और इसके साथ एक और सवाल कि रूह कुदस का जो बपतिस्मा है वो हमें कब होता है। वो भी हमें उसी वक्त हो जाता है जब हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा जो है वो कबूल करते हैं। अब रूह कुदस तो हमें मिल गया है खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से। अब रूह कुदस कहाँ रहता है, रूह कुदस कहाँ जो है वो सकूनत करता है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले रूह कुदस जो है वो नाज़िल हो चुका है। अब वो रूह कुदस इस दुनिया में है, वो रूह कुदस ईमानदारों के अंदर है। वो रूह कुदस अब दोबारा आसमान पर नहीं चला गया। पुराने अहदनामा में रूह कुदस जो था वो जुज़वी तौर पर जो वो नाज़िल होता था और उसके बाद फिर जो वो चला जाता था, लेकिन नए अहदनामे में अब मुकम्मल तौर पर रूह कुदस का नज़ूल हुआ है। और अब रूह कुदस कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारे दिलों में। इसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 17वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर है। किधर है? तुम्हारे अंदर है। ये खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि रूह कुदस तुम्हारे अंदर होगा। अभी रूह कुदस नाज़िल नहीं हुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जब रूह कुदस नाज़िल होगा तो वो तुम्हारे अंदर होगा। और उसके बाद हम कुरिन्थस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत उसका पहला बाब और उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं बल्कि उसके खून के खरीदे हुए। रूह कुदस किधर है? हमारे अंदर। वो हमारे अंदर सकूनत करता है। इसके साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 22वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, और जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। रूह कुदस जो है अब नाज़िल हो चुका है और अब वो ईमानदारों के अंदर है, वो उनके अंदर जो है वो सकूनत करता है। इसके बाद हम रूह कुदस के काम देख सकते हैं। रूह कुदस के बहुत सारे जो है वो काम हैं। रूह कुदस जो है वो हमारी मदद करता है, रूह कुदस हमारी रहनुमाई करता है, रूह कुदस हमें इल्हाम देता है, रूह कुदस हमें सिखाता है, रूह कुदस हमें हमारे गुनाहों का एहसास दिलाता है और रूह कुदस जो है वो गवाही देता है। ये रूह कुदस के काम है। और इसके अलावा रूह कुदस के बहुत सारे जो है वो काम हैं। और हम देखते हैं कि रूह कुदस के बारे में कि जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि ये खुदा का रूह है और ये खुदा उनको कबूल करने से मिलता है और ये ईमानदारों के दिलों में सकूनत करता है। इसके अलावा रूह का फल
रूह के 9 फल हैं, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। जब खुदा का रूह हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर सुकूनत करता है, तो ये लाजमी है कि ये जो रूह के फल हैं ये हमारी जिंदगी से जो है वो जाहिर होने चाहिए, नजर आने चाहिए। और आज के तलावत करदा हिस्सा पर हम गौर करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे। जब ईद पेंतिकोस का दिन था तो सारे जो ईमानदार हैं वो एक जगह जमा थे। ये तकरीबन 120 लोगों की जमायत थी और वो सब एक जगह जमा हुए और वो सब जमा होकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, खुदावंद से इल्तिजा कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे, क्या खुदावंद जिस मददगार का आपने हमारे साथ वादा किया उसको भेजिए। और खुदा ने अपने वादा के मुताबिक दूसरा मददगार जो है वो अपने लोगों के लिए भेजा। और किस तरह से रूह कुदस का नज़ूल होता है, खुदा का कलाम इसके बारे में बताता है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा। यहाँ पर जो आंधी के लिए अबरानी जुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है रुआह, और इसका बाज़ जगह पर तर्जुमा जो है वो रूह भी किया गया है, और इसको खुदा का सांस, खुदा का दम भी कहा गया है। और आंधी, सुनाटा, और इससे आगे जब हम देखते हैं, उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक आकर हर एक पर ठहर गई। आंधी, उसके अलावा आग, जुबानें, ये सब जो है ये खुदा की हजूरी की अलामत कि खुदा जो है वो उनके दरमियान हाजिर हुआ और खुदा ने उनको पाकरू दिया और वो सब पाकरू से मामूर हुए और उन्होंने खुदा पाकरू की मामूरी का जो है वो गहरा तजर्बा किया। और उसके बाद हम देखते हैं वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जिस तरह से रूह उनको गाइड करता गया वो जो है वो बोलते गए। और यहाँ पर जो एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि तमाम ईमानदार एक जगह जमा थे और वो खुदा की इबादत कर रहे थे और उन पर रूह कुदस जो है वो नाज़िल हुआ, उन्हें बरकत मिली। आज बरकत पाने की जो जगह है वो खुदा का घर है। हमें खुदा के घर में आने की जरूरत है और कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर खुदा की इबादत करने की जरूरत है। जब हम खुदा की इबादत करेंगे तो फिर वो हमें बेशुमार बरकत से जो है वो नवाजे। और रूह कुदस जो हमारे अंदर है, हमें रूह कुदस से मामूर होने की जरूरत है। हमें रूह कुदस की मामूरी हासिल करने की जरूरत है। और सिर्फ वही लोग रूह कुदस से मामूर होते हैं, वही लोग रूह कुदस की मामूरी को हासिल करते हैं जो बड़ी संजीदगी और अकीदत के साथ खुदा की इबादत करते हैं, खुदा से दुआ मांगते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। वो लोग कभी भी रूह कुदस का तजर्बा नहीं कर सकते, उसकी मामूरी को हासिल नहीं कर सकते जो संजीदा नहीं होते, जो संजीदगी से जो है वो खुदा की वर्शिप नहीं करते, दुआ नहीं करते, उसके कलाम को नहीं सुनते, सीखते, वो कभी भी रूह कुदस का तजर्बा हासिल नहीं कर सकते। और रूह कुदस की मामूरी है, रूह कुदस नाज़िल हो चुका है, अब रूह कुदस से मामूर होना है। और हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों पर एक दफा रूह कुदस नाज़िल हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी दफा जो है वो रूह कुदस से मामूर होते हुए हमें नजर आते हैं। और हम भी बार बार जो है वो रूह कुदस से मामूर होते हैं, रूह कुदस की मामूरी का तजर्बा हासिल करते हैं और हमें रोज बरोज इस मामूरी में आगे बढ़ने की और तरक्की करने की कोशिश है। और वहां पर तकरीबन 15 कौमें जो है वो वहां पर जमा थी और जब हम देखते हैं कि बोल रहे थे तो हर एक को जो है वो अपनी जुबान में जो है वो समझ आ रही थी, हर एक ये समझ रहा था कि मेरी ही जुबान जो है वो बोली जा रही है। और रूह कुदस का जो दूसरा बड़ा काम है वो ये है कि वो हमें समझाता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें उलझनों में नहीं डालता, बल्कि रूह कुदस का काम यह है कि वो हमें समझाता है, सिखाता है, ताकि हम अच्छे तरीके से जो है वो इन बातों को समझ सकें। और मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों को का बयान सुनते हैं,
اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا جاتا ہے۔ جب روح القدس کا نزول ہوا تو سب لوگ حیران تھے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن وہاں پر بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ٹھٹھا کیا اور الزام لگایا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ روح القدس کی معموری میں خدا کی ورشپ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے ان پر تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کہا گیا ہے، اس طرح سے کہا ہے، لیکن وہ خدا کے روح میں، خدا کے مسا میں وہ خدا ان کی پرستش کر رہا ہوتا ہے۔ اور لوگ آج بھی تنقید کرتے ہیں۔ ہمیں تنقید کرنے والا نہیں بلکہ ہمیں اس طرح سے کرنے والا بننا چاہیے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے ہمیں اور زیادہ برکات سے نوازتا ہے اور ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ پاک روح کی معموری سے نوازتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ روح کی نعمتیں بھی ہیں۔ روح ایک ہی ہے لیکن اس کی نعمتیں جو ہیں وہ طرح طرح کی، اور یہ جو نعمتیں ہیں یہ روح القدس ہی ہمیں دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں روح کی نعمتوں کے تعلق سے حکمت کا کلام ہے، علمیت کا کلام ہے، ایمان کی روح ہے، شفا دینے کی نعمت ہے، معجزوں کی نعمت ہے، نبوت کی نعمت ہے، روح کا امتیاز ہے، طرح طرح کی زبانیں ہیں اور زبانوں کا ترجمہ ہے۔ یہ روح کی نعمتیں ہیں اور روح جسے چاہتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، اور ہمیں ان نعمتوں کے آرزومند ہونا چاہیے۔ ہمیں خداوند سے دعا کرنی چاہیے، خداوند سے مانگنا چاہیے کہ خداوند مجھے ان نعمتوں سے نوازیے، مجھے ان نعمتوں سے مالا مال کیجیے۔ اور جو کوئی خدا سے مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، خدا اس کو دیتا ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، اور ہم روح القدس کو مکمل طور پر، پوری طور پر جانیں اور اپنی زندگیاں خدائے پاک روح کے تابع کریں اور خدائے پاک روح کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ کو خدائے پاک روح کی معموری کا تجربہ نہیں ہوا تو آپ خدا سے دعا کریں، منت کریں، آنسو بہائیں، خداوند سے التجا کریں کہ خداوند آپ کو خدائے پاک روح کی معموری کا تجربہ عنایت کریں، اور آپ اور خدا کے کلام میں، خدا کے مسا میں آگے بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ خدا مجھے آپ سبوں کو اپنے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق